حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہے، کیونکہ وہ لوگ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انسان کو اہمیت دیا کریں، پیسوں کو نہیں، کیونکہ امیر کو غریب اور غریب کو امیر ہونے میں اتنا وقت نہیں لگتا ہے۔ جو والد کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ لگ جاتا ہے۔ جو اللہ کو رو رو کر مناتے ہیں نا، انہیں تقدیر سے گلے شکوے نہیں ہوتے۔ تم بس قبولیت پر یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ طوفان میں کشتیاں اور غرور میں ہستیاں اکثر ٹوٹ جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور صبر، ذرا انتظار تو کرو، جلد معجزے ہونے والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اگر دنیا بہترین جگہ ہوتی تو یہاں کوئی روتے ہوئے نہیں آتا۔ ہزار چاہنے والوں سے ایک نبھانے والا بہتر ہوتا ہے۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی اس کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اے زمینوں اور آسمانوں کے رب، ہماری نیت خواہشات کو پورا فرما دے۔ آنکھوں سے گرنے والے آنسو اور نظروں سے گرے لوگ کبھی نہیں اٹھا کرتے۔ ظلم کی رات کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، انصاف کی صبح ضرور ہوتی ہے۔ یہ زمانہ ہی سکھاتا ہے کیسے رہنا ہے زمانے میں۔ بارشوں میں پتنگیں اڑایا کرو، زندگی کیا ہے خود ہی سمجھ جاؤ گے۔ دکھاوے کے اچھے بننے سے بہتر ہے کہ آپ برے ہی رہیں۔ لامحدود خواہشات محدود زندگی کا سکون چھین لیتی ہے۔ کوئی آپ کے لیے دروازہ بند کرے تو مسکرا کر اسے بتائیں کہ کنڈی اور دروازے دونوں ایک طرف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ جب اکیلے سفر میں چلنا آ جائے تو خود سے اچھا کوئی ہم سفر نہیں ہوتا۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت اور عزت کے۔ میں نے ادھوری تمناؤں کا حل فجر کے سجدے میں پایا ہے۔ عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، بس تم اللہ پر توکل رکھو اور صبر کرتے رہو۔ ہم کسی سے محبت کرنا بند نہیں کرتے، بس اسے بتانا بند کر دیتے ہیں۔ یہ زندگی صرف تب تک ہی ہلکی پھلکی لگتی ہے جب تک سارے بوجھ ماں باپ اٹھاتے ہیں۔ سچ بول کر بے شک کسی کا دل توڑ دو، لیکن جھوٹ بول کر کسی کا بھروسہ مت توڑو۔ رابطے سدا ایک جیسے نہیں رہتے، جو عزیز بناتے ہیں وہی پھر مریض بناتے ہیں۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے پاؤں میں گرتے دیکھا ہے۔ گھر بڑا ہو یا چھوٹا، مٹھاس نہ ہو تو انسان کیا چینٹیاں بھی نہیں آتی۔ پھول تو ان ہاتھوں پر بھی اپنی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں جو ان کو مسل دیتے ہیں۔
उस रब से नाउम्मीद होना कैसा जो 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है उसे तुमसे दुनिया की कोई शख्सियत नहीं छीन सकती। सच कहा है किसी ने, मजबूरी इंसान की असूल तोड़ देती है। बेशक जब अल्लाह थाम लेता है तो पूरी दुनिया मिलकर भी नहीं गिरा सकती। असल कामयाबी देने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। अल्लाह उनको आज़माता है जिनको करीब लाना चाहता है। तौबा की मोहलत मिलना भी अल्लाह का एक बहुत बड़ा एहसान है। उम्रें गुज़र जाती हैं लेकिन लफ्ज़ों के घाव नहीं भरते। बेहतरीन सुबह वही होता है जिसका आगाज़ अल्लाह के नाम से हो। चाहतों का कमान रखा करें, पछतावे काम नहीं आते। हसद करना रब की तक़सीम से इख्तलाफ करना है। फ़लाँ ऐसा है फ़लाँ वैसा है, ए इंसान ज़रा गौर कर तू खुद कैसा है। खुद कमाने लगे तो समझ आया बाप ने बाप का किरदार कैसे निभाया था। जब अल्लाह ने कुछ तुम्हारे दिल में डाला है तो यकीन रखो नसीब में भी वही डालेगा। और जब तुम्हें जीने का शौक़ होता है तो वक्त अपनी रफ्तार बढ़ा देता है। कभी ज़िंदगी से बेजार होकर जीते हैं और कभी ज़िंदगी खुशगवार लगती है। खुदा के खजानों में से सबसे कीमती खजाना राह हिदायत है। ये दुनिया के इंसान भी अजीब हैं, मिल जाए तो कद्र नहीं करते और ना मिले तो सब्र नहीं करते। लालच की मंडी में सबसे सस्ता और कम कीमत इंसान की ज़मीर का होता है। अपनी गलती पर एतराफ़ कर लेना एक बेहतरीन खुसूसियत है। इससे नफ्स में आजिज़ी परवान चढ़ती है और तकब्बुर कमज़ोर हो जाता है। सबक देने का माहिर हो गया है ज़माना, हर कोई एक दूसरे का उस्ताद बनने की कोशिश कर रहा है। कहते हैं कि औरत अगर सच्ची मोहब्बत करने लगे तो वह माँ जैसी परवाह करने लगती है। औरत की सबसे बड़ी इबादत अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करना है। औरत एक तस्वीर की मानंद है। अगर वह किसी कदरदान मर्द के हाथ लगे तो वह कभी उसके रंग ख़राब न होने देता। जिस ख़ानदान में सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हों, उन्हें कभी दूसरों के पांव पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी उम्र किसी के साथ कितना ही अच्छा कर लें, लेकिन किसी मजबूरी में अगर उसका साथ न दे सकें तो सारी अच्छाइयाँ कुएं में गिर जाती हैं। ज़िंदगी में मुश्किल चाहे आपके अमाल से हो या अल्लाह पाक की आजमाइश हो, उनका हल सिर्फ नमाज और सब्र है। एक ही ज़बान बोलने वाले नहीं बल्कि एक जैसे जज्बात रखने वाले एक दूसरे को समझते हैं। हर शख्स को राज़ी रखना मुनाफिक आदमी का काम है। बाज़मीर और असूल लोगों से अक्सर लोग नाराज़ और नाखुश होते हैं। इस दुनिया को धोखे का घर इसलिए भी कहा जाता है कि यहाँ हर हकीकत उल्टी नज़र आती है। मोहब्बत तो यह है कि जब खुदा कहता है मैंने सब तेरे लिए बनाया और तुम कहते हो मैंने सब कुछ तेरे लिए छोड़ दिया। जहाँ दिमाग को सिर्फ हदें नज़र आती हैं,
मोहब्बत वहाँ भी छुपा हुआ रास्ता दिखा देती है। हकीकी सुकून सिर्फ उस वक्त मिलता है जब आप तन्हाई में खुदा से लौ लगाते हैं। हर इंसान को किसी मकसद के लिए बनाया गया है और उस मकसद को पूरा करने की ख्वाहिश उसके दिल में डाल दी गई है। टूटा हुआ दिल खुदा का तवज्जो खींचता है। खुशनसीब है वह रूह जो खुदा के लिए रोती है। लोग क्या कहेंगे, यह एक ऐसी घटिया सोच है जो अल्लाह का डर निकाल के लोगों का खौफ जहन में गालिब कर देता है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जितने सजदे जवानी में कर सकते हो कर लो, क्योंकि मैंने बुढ़ापे में लोगों को अक्सर सजदे के बगैर नमाज पढ़ते देखा है। गुजरी हुई पाक हस्तियों का जिक्र बाइसे सवाब है और गुनहगारों का अजाब से रिहाई दिलाता है।